નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયની પ્રવૃત્તિ શીખીશું। તો ચાલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો પહેલાં છે હિન્દી, એમાં પ્રવૃત્તિ 1 कुत्ते की वफादारी। तो જોઈએ ચાલો। आपके पुस्तक में दी गई कहानी पढ़िए और समझिए। प्रवृत्ति 1, नीचे दिए गए चित्र को देखें। ये चित्र कहानी की नींव रखते हैं। आपको यह चित्र को देखकर एक नई कहानी बनानी है। कुछ बातें ऐसी भी हो जो आप अपने आप से सोच कर लिखिए। तो दोस्तों, आ नीचे तमने एक सरस मजाનું ચિત્ર ત્રણ આપ્યા છે। હવે આ પાયો છે કહાની બનાવવા માટેનો। તમારે આના આધારે કહાની બનાવવાની છે અને અમુક એવી વસ્તુ પણ તમારે લખવાની છે કે જે ચિત્રમાં તમને દેખાતી હોય અને તમારા વિચારો પ્રમાણે તમે લખી શકો। તો આ ત્રણેય ચિત્રને વ્યવસ્થિત જોઈ લો અને તમારા પાઠ્યમાં પણ આ કહાની આપેલી છે, એ પણ એક વખત વાંચજો। ચાલો શરૂ કરીએ। गांव में एक किसान रहता था जो सुबह उठने के बाद अपने सारे काम निपटाकर एक सांप को दूध पिलाने के लिए जाता था। उस किसान की और सांप की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों में कोई भी एक दूसरे के कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि दोनों बड़े ही मित्र भाव से एक दूसरे के साथ रहते थे। तो दोस्तों, આવી રીતે તમારે આ कहानी लखवानी हती। मित्रों, तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो मारी चेनल ने सब्सक्राइब और वीडियो गमे तो लाइक जरूर करजो। हवे स्वयं प्रयत्न करे एमां आपणे जोईए तो पाठ 3 में आए कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखे और वाक्य में प्रयोग करे। એટલે मुहावरा आप्या छे एनो अर्थ लखवानो छे અને वाक्य बनाववाना छे। तो चालो जोईए। पहेलुं छे कोई चारा न होना तो कोई विकल्प न होना। वाक्य बनशे मेरी साइकिल में पंचर था, मेरे पास चलने जाने के अलावा कोई चारा न था। बीजू छे आव देखा न ताव तो बिना सोच विचार के काम करना। तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर छोटे ने आव देखा न ताव और पत्थर मार दिया। चलो तीजो मुहावरो જોઈએ। मात खा जाना तो पराजित होना એટલે हारी जाવું એમ। आज गजब हो गया, कुत्ता बिल्ली के सामने मात खा गया। ત્યારબાદ છે प्रवृत्ति 2, नीचे कुछ लिंग आधारित शब्द लिखे हैं, उनकी जोड़ी का शब्द लिखिए। तो एक उदाहरण आपने आप्યું છે अभिनेता तो अभिनेत्री એટલે કે પુલ્લિંગ આપ્યું છે, આપણે સ્ત્રીલિંગ કરવાનું છે। તો ચાલો જોતા જઈએ। તો ગાયનું થશે બેલ, મોર તો મોરની, ઘોડા તો ઘોડી, રાજા તો રાની, દેવતા તો દેવી, નાગ नागिन, शिक्षक तो शिक्षिका, कुत्ता तो कुतिया, शेर तो शेरनी। दोस्तों, हम यहाँ संज्ञा के बारे में जानेंगे એટલે કે આપણે સંજ્ઞા વિશે થોડીક વાતો કરીશું અને થોડાક નિયમો શીખીશું। किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो खास ध्यान रखજો कई वस्तु, तो कि एक खास तो व्यक्ति, प्राणी या स्थाननी ओळख આપણને આપે। કાં એ વ્યક્તિનું નામ હોય, કાં તો એ પ્રાણીનું નામ હોય, કાં તો કોઈ સ્થળનું નામ હોય। તો જ્યાં નામ આપણને બતાવે, નામ સૂચિત કરે એટલે કે નામ આપે, નામની ઓળખ આપે, એવા શબ્દને મિત્રો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહે છે, જેના દ્વારા આપણને કોઈ એક ખાસ વ્યક્તિ વિશે ખબર પડે। એમાં કોઈ એક વ્યક્તિનું જ નામ હોય, કોઈ પ્રાણીનું હોઈ શકે, કોઈ સ્થળનું હોઈ શકે। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। એટલે કે જે શબ્દ આખી જાતિનો બોધ કરાવે એટલે કે આપણને ઓળખ આપે આખી જાતિની, જેમ કે હું કૂતરો કહું, કૂતા કહું, બરાબર, તો એમાં બધા જ કૂતરા આવી જાય। હું નદી કહું એટલે એમાં બધી આવી જાય, ગંગા નદી આવી જાય, જમના નદી પણ આવી જાય। પછી હું પોપટ કહું એટલે એમાં બધા જ પોપટ આવી જાય। તો આ બધી જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય, બરાબર। નદી છે, પછી દેશ, આવી રીતે સૈનિક છે, આખી જાતિનો કોઈ એક વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ ના હોય, આખી જાતિનો ઉલ્લેખ હોય। આપણે ઉદાહરણ જોઈએ। નર્મદા અમરકંટક पर्वत से निकलती है। અને બીજું ઉદાહરણ છે સભી છાત્ર આજ દેર से आए। તો મિત્રો ઉપરનું પહેલું વાક્ય છે, અહીંયા નર્મદા વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે, એટલે કે નર્મદા છે એ એક કોઈ નદીનું નામ છે। જો આપણે ખાલી નદી કહેત કે નદી, તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞા થઈ જાય, પણ અહીંયા નર્મદા નામ આપ્યું છે એટલે એ વ્યક્તિવાચક કહેવાય। અહીંયા સાત્ર, જો સાત્ર છે એ જાતિ બતાવે, એમાં કોઈ એક સાત્રની વાત નથી। આપણે કોઈ અહીંયા નામ લખ નાખી
કે મુકેશ, તો મુકેશ છે એ વ્યક્તિવાચક છે, પણ છાત્ર કીધું એટલે એ જાતિવાચક, એમાં બધા છાત્ર બધા બાળકો આવી જાય। नीचे दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अलग कीजिए और इसके अलावा दूर हर एक के 5-5 उदाहरण लिखिए। એટલે કે ઉપર આપણને અહીંયા આપ્યા છે ભારત, હિમાલય, નદી, ગાય, સૈનિક, પર્વત, પેડ, કુત્તા, અને આપણે જાતિ અને વ્યક્તિવાચકમાં વિભાજન કરીશું। તો ચાલો જોતા જઈએ। તો ભારત છે એ વ્યક્તિવાચક, શું કામ? કારણ કે ફક્ત એક વ્યક્તિનો જ ઉલ્લેખ છે, કે ભારત એ દેશનો ઉલ્લેખ છે, એ એકનો જ બરાબર સ્થળનો ઉલ્લેખ કરે એટલે વ્યક્તિવાચક। હિમાલય એ પણ વ્યક્તિવાચક, નદી એ જાતિવાચક બનશે, ગાય એ પણ જાતિ, કારણ કે ગાયની બધી જાતિ બધી નદીઓ આવી જાય, બધી ગાયો એમાં આવી જાય, એટલે સૈનિક એ પણ જાતિવાચક, એમાં કોઈ એક સૈનિકની વાત નથી, નામ આપી દે તો વ્યક્તિવાચક, પણ એમાં બધા સૈનિક। પછી પર્વત, તો પર્વત છે એ પણ જાતિવાચક બનશે, પેડ એ પણ જાતિવાચક, અને કુત્તા એ પણ જાતિવાચક। હવે નીચે 3 ઉદાહરણ મેં લખી દીધા છે, જોઈ શકો છો કે શહેર, શિક્ષક અને દેશ આ જાતિવાચક, અને આ તરફ આપણે વ્યક્તિવાચકની વાત કરી તો દિલ્હી, હિન્દી, રમેશ, ગંગા, યમુના, તાજમહલ અને ગાય આ બધા વ્યક્તિવાચક છે। બીજી પ્રવૃત્તિ છે કથनी और करनी। आपके पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए। એમાં પ્રવૃત્તિ 1 છે, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। તમારે આ ફકરો શાંતિથી વાંચવાનો છે। महानगरों में भीड़ होती है, समाज या लोग नहीं बसते। भीड़ उसे कहते हैं जहाँ लोगों का जमघट होता है। लोग होते हैं, उनकी छाती में हृदय नहीं होता। सिर होते हैं लेकिन उनमें बुद्धि या विचार नहीं होता। हाथ होते हैं लेकिन उन हाथों में पत्थर होते हैं विनाश के लिए। यह हाथ निर्माण के लिए नहीं होते। यह भीड़ एक गली से दूसरी गली की ओर जाती है, क्योंकि भीड़ में होने वाले लोगों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। सारे अनजान लोग इकट्ठा होकर विनाश करने में एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि जिन इमारतों, बसों या रेल में यह तोड़फोड़ के काम करते हैं वह उनकी नहीं होती, और ना ही उनमें सफ़र करने वाले उनके अपने होते हैं। महानगरों में लोग एक ही बिल्डिंग में पड़ोसी के तौर पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पड़ोसी संबंध रहित होते हैं। पुराने ज़माने में दही जमाने के लिए लोग जामन मांगने पर पड़ोस में जाते थे। फ्लैट में फ्रिज है, इसलिए जामन मांगने की ज़रूरत नहीं रही। सारा पड़ोस, सारे संबंध इस फ्रिज में फ्रीज हो गए हैं। तो मित्रों, आ फकरा उपरथी આપણે થોડાક પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે, જોઈએ। પહેલું છે ગદ્यांश का एक शीर्षक दीजिए, એટલે કે આનું શીર્ષક આપો, टाइटल। तो मैं मारी रीते लख्યું છે, તમે તમારી રીતે લખી શકો। महानगर का जीवन। बीजो प्रश्न है महानगरों में भीड़ होती है, समाज या लोग नहीं बसते। इस वाक्य का आशय प्रश्न कीजिए। तो महानगरों में लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, पर उनके बीच भाईचारा और प्यार नहीं होता। मित्रों, તમે હજી પણ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। भीड़ में बुद्धि या विचार नहीं होता, ऐसा कौन सी बात से स्पष्ट होता है? तो अनजान लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर विनाश में एक दूसरों का साथ देते हैं। बस, रेल, इमारत सब में तोड़फोड़ करते हैं। चौथा प्रश्न, जमघट और समाज में क्या अंतर होता है? तो कि जमघट यानी भीड़ में छाती में हृदय नहीं होता, सिर में बुद्धि नहीं होती, और समाज जहाँ लोगों के बीच आपस में भाईचारा नहीं होता। आगळनो प्रश्न है फ्रिज आने से क्या हानि हुई? तो फ्रिज के आने से लोगों के घर में 3-4 दिन का खाना और सब्जी इत्यादि चीज़ें पड़ी रहती है, इसलिए हम कोई चीज़ पड़ोस में मांगने जाने की ज़रूरत नहीं रहती, और इस तरह धीरे धीरे पड़ोसियों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। हमें આપણે प्रवृत्ति 2 જોઈ। कथनी और करनी पाठ का संक्षेप करके अपने शब्दों में लिखिए। એટલે કે થોડા કથની और करनी એના વિશે થોડુંક તમારે અહીં લખવાનું છે, તો મેં લખી દીધું છે, જોઈએ આપણે। पहलू है, एक आदमी था, उसने बगीचे में बोर्ड लगाया हुआ था कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, लेकिन वो खुद ही फूल तोड़ रहा था। इस घटना में कहनी और कथनी में अंतर है। बीजू જોઈએ, एक बस में लिखा था यहाँ धूम्रपान निषेध है, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही धूम्रपान कर रहे थे।
इसीलिए उनकी भी कहनी और कथनी में अंतर है। तीजू જોઈએ, एक दुकान के सामने दुकानदार ने एक व्यक्ति को स्कूटर रखने से मना किया कि तुम हमारी दुकान के सामने स्कूटर मत खड़ा करो, लेकिन जब उसका बेटा आया तो उसको मना नहीं किया, तो दुकानदार की कथनी और कहानी में फर्क था। चौथुं है, एक दिन एक सज्जन बिजली का बिल जमा करने के गए, उनके साथ उनका पोता भी था। पोता कह रहा था, दादाजी हम लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उसके दादाजी नहीं माने और बीच में से ही बिल दे दिया, तो उनकी भी कहनी और कथनी में फर्क है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમને ઘરે શીખીએ મોડ્યુલ્સ ધોરણ 1 થી 8 તમામ પ્રવૃત્તિઓની સરળ સમજૂતી મારી ચેનલ સ્ટડી વિથ રમેશ ઉપર મળશે, તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો।